Hello and welcome to this episode of BrandLive.live, where we have someone bringing a spice to your wardrobe over here. Over to Sir. Could you just introduce yourself for the camera? So my name is Aditya, and I run a clothing brand called Dalchini. As he mentioned that we add spice to your wardrobe, as Dalchini adds flavor to your food, we say we add spice to your wardrobe. And we are here to have some amazing raw conversation about building a clothing brand. So yeah, looking forward to it. So, as we ease on to our conversation, I just want to, kind of delve on what actually started Dalchini. Like, what was it? Let us know. So my background is quite different. I am not from a fashion background at all. So I'm a mechanical engineer by background. I started my journey with Escorts in 2009. Uh, did mechanical engineering at Galgotias College in Noida. I joined Escorts. I was in production there. I worked there for 1.5 years. Then I joined Honda Cars in Noida itself, and there I was into new model development, new product development. In manufacturing, I was leading the projects called Honda City and Honda Civic. In Honda, I had a great stint, and I was working there for. I had almost worked there for 11 years. Then 2020, the pandemic happened, and I was leading a project called Honda City Third Gen, and my project almost got over at that point of time, and I felt that कुछ बहुत ज़्यादा challenging नहीं है अभी मेरे पास और we were sitting at home, right? मतलब as such कोई काम भी नहीं था, and we were seeing a lot of videos, we were seeing a lot of digital era coming around. So at that point of time, Honda announced a VRS. VRS is voluntary retirement scheme. Okay. So I opted for that. Obviously, my boss ignored me and said, "Okay, you are doing good at your job. Please don't leave, and it is not required at your end." So I thought, "के business के लिए क्या चाहिए होता है? You need money, right?" And it was a chance to get money from an office where I have worked for 11 years. I can get a chunk of money and I can start something of my own. So VRS opportunity दोबारा आई, then I again applied for that and I got it through. मतलब मैंने अपने बॉस को कन्विंस किया कि मुझे एक चांस दे दो, मुझे मतलब मैंने आई हैव सर्व दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर सो लॉन्ग, बट आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन एंड दिस इज अ चांस दैट आई कैन गेट सम फंड एंड सम मनी एंड आई कैन स्टार्ट ऑफ माय ओन. So that was in 2020. There was no plan at all. There was no plan of starting a Dalchini. Dalchini नाम भी नहीं था उस समय. ये भी नहीं पता था मुझे क्लोथिंग करना है, फूड करना है, कुछ भी एक्सरसाइज करना है. I just took up lunch. Just went gung ho. बस यार कुछ नहीं सोचा था. बस ये था कि कुछ स्टार्ट करना है. 2020 November I quit the job. I put in the paper resignation paper and 21 COVID happened. मेरे को इतना बुरा कोविड हो गया, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड वहाँ पे भी थॉट चल रहे थे कि एक चीज थी कि आई वाज सो रेस्टलेस बिकॉज एक लाइफ में आपने जब 12-13 साल काम किया होता है कि तो आपको आइडल बैठने की आदत नहीं होती, राइट? तो और कोविड के टाइम हम लोग सब घर पे थे और मैंने जॉब छोड़ी थी. सो दैट एट हॉस्पिटल ओनली आई स्टार्ट, मतलब क्योंकि मेरे को फैशन का नैक था शुरू से. पीपल अराउंड मी न्यू दैट आई कैन, मतलब मेरे पास बहुत लोग स्टाइलिंग के लिए आते थे पूछने, क्योंकि मैं जैसे स्टाइल करता था अपने आप को. मेरे को एक दिमाग में था कि हाँ, एक क्लोथिंग एक ऐसी लाइन है कि विच आई कैन स्टार्ट, एंड उस समय बैरियर भी कम लगता था कि फैशन तो स्टार्ट हो ही जाएगा आराम से. सो दैट वाज अ पॉइंट एंड हॉस्पिटल में एक थॉट आया कि लेट्स व्हाई कांट आई स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड. सो दैट थॉट इम्प्लांटेड एंड then in 2021 I started the brand. Okay. Yeah. So don't mind us asking like आपने VRS कितना मिला था? Can you tell us that? Most you know VRS में कितना कितना मिला था? Like how much did you think? Like what was the amount? And tell us what was the amount. चलो बता दूं. Yeah, just अरे hearing about it. He's also part of the conversation. तो Take note, the guys behind the camera and in front of the camera are part of the conversation. That's Brad in the background just prompting. Don't mind him. so VRS में क्योंकि मैंने 11 साल जॉब की थी होंडा में, so I got an amount of around 38-40 lakh rupees, and which I thought is a good chunk of money to start anything, right? मतलब you can start with, and आप 1 करोड़ भी कमाए, 2 करोड़ भी कमाए, बट एक अमाउंट अगर आपको मिल जाता है तो इट्स इजियर टू स्टार्ट. कोई लोन नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, तो यू कैन स्टार्ट एंड प्ले अ बेट एटलीस्ट के. और तब ये सोचा था कि जॉब में तो वापस चले जाएंगे यार, कभी ना कभी 11 साल जॉब किए तो जॉब में तो कभी भी वापस जा सकते हैं. तो दैट वाज अ थॉट प्रोसेस. There has been a lot of Delhi, and right now we're sitting in Mumbai. So I just want to know, I want to bridge the gap. Like Dalchini was, like there's a story that Dalchini was there, but how we're sitting right now in Mumbai. So how do you feel? Can you bridge the gap for us? So Dalchini was born in Noida, Delhi NCR. I was from Noida only. I was working there, तो Dalchini वहीं start हुआ, and we ran there only. मतलब कुछ issue नहीं था, and I
थिंक के अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो देयर इज अ मिथ कि वो मेट्रो में स्टार्ट हो सकता है, वो एक छोटे से शहर में भी स्टार्ट हो सकता है। आपको एक बस जज्बा चाहिए कि कुछ शुरू करना है, आपको एक स्टेप लेना होता है। वो आप किसी भी शहर में हो, कहीं पे भी हो, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। Our reason of for moving from Delhi to Bombay was two. One was straightforward, that my wife, who is also a part and heart, I can say, of Dalchini. Matlab, she works 24/7 mentally on Dalchini. So she was working, right? एक को घर में काम करना है, अगर आपको बिजनेस रन करना है तो she is the sole earner of our family, and she is supporting me as well in my business and my growth. So she got an opportunity for Bombay. She's a lawyer by profession, so she got an opportunity for Bombay from a good company. So we thought कि if both are of एक की growth नहीं रुकनी चाहिए, एक one should have a growth consistently के दूसरा वाला जो भी struggles कर रहा है तो वो he can take bets basically. तो एक reason वो था। Secondly, हम लोग पॉपअप्स के लिए बॉम्बे बहुत आते हैं, मतलब आते थे, एंड वी थॉट, और हम अगर अपने वेबसाइट पे भी देखें तो मोस्टली ऑर्डर हमारे बॉम्बे बैंगलोर से हैं। तो वी थॉट के बॉम्बे मेरे लिए भी मार्केट अच्छी होगी फैशन ब्रांड के लिए। तो आई टुक अ रिस्क, लेना तो अब सीख ही लिया था, तो सोचा कि एक और रिस्क लेके देख लेते हैं इस पॉइंट पे कि एक जॉब भी शिफ्ट था, और वी थॉट के बॉम्बे कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर दालचीनी एज वेल। सो वी स्टार्टेड दालचीनी इन 21, एंड एज आई मेंशन कि मेरा फूड ब्रांड भी चल रहा था, देयर वर 2 D2C ब्रांड। सो 6 मंथ्स के बाद रनिंग 2 D2C ब्रांड मुझे लगा कि बहुत टफ है, तो दालचीनी को बंद कर दिया था एज अ D2C आफ्टर 6 मंथ्स। Oh, so Dalchini was a या दालचीनी को हमने एज अ D2C बंद कर दिया था 6 मंथ्स के बाद, एंड आई ventured into exports of garments with, and I partnered with someone so that I wanted के मुझे वहां से funds मिले एक्सपोर्ट से, and I can fund it to my food brand. Because food brand was my passion and we were wanted to build it a big thing. But जो आप सोचते हो वो होता नहीं है, and I was quite naive also that point of time. I thought के उस पॉइंट पे लगता है ना, आप जब जॉब से आते हो तो आपको आदत होती है, राइट, एक हर महीने एक मैसेज आने की दैट दिस मच सैलरी इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। सर आपको कभी समझ में नहीं आता कि जब सैलरी नहीं आएगी तो कैसा होगा, और कभी वो फील भी नहीं किया था। तो एकदम से जब आपके फंड्स एग्जॉस्ट होने शुरू होते हैं बिजनेस में, देन यू फील के अब क्या कर रहे हैं, और यू टेंड टू रन बिहाइंड मनी, राइट, कि आपको लगता है कि बस जो भी काम करूं वो जल्दी से बस पैसे आ जाए, मुझे पैसे चाहिए। मतलब मुझे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था तो, और इतना नॉलेज भी नहीं थी उस समय कि मैं ये कह सकूं कि इट इज अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम एंड मनी विल नॉट कम इन ऑन द फर्स्ट डे। वो हो सकता है 10वें साल आए या 5वें साल आए, बट आई थॉट के पैसा आएगा, आ जाएगा जल्दी। तो आई वॉज रनिंग बैंड मनी। तो मैं उस समय बस बहुत रेस्टलेस था जब मैंने जॉब छोड़ी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे पैसे कमाने हैं बस जल्दी से। तो आई वाज ट्राइंग एन नंबर ऑफ थिंग्स, फूड ब्रांड खोला, क्लोथिंग ब्रांड खोला, एक्सपोर्ट्स खोला, बहुत चीज़ें करी बहुत। तो मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप करी एंड आई मतलब लेटेंटली सेड यस टू हिम। मैंने थोड़ा फंड उसमें डाले एंड वहाँ पे काफ़ी धोखा हुआ एंड आई लॉस्ट 18-20 lakhs देयर। देयर वाज अ पॉइंट इन 22 आई वाज finished with all my savings and I had no money in bank. I mean literally, क्योंकि my wife was running, तो at that point of time she was running the family and all, but उस point पे ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ना तो फूड ब्रांड में फंड देने के लिए पैसे हैं ना, बिकॉज सब ग्रोइंग स्टेज पे था, राइट। यहाँ इतना लॉस हो गया है, दालचीनी तो बंद कर दिया है। तो 22 एंड में आई थॉट के आई शुड गो बैक टू माई जॉब एंड आई शुड स्टार्ट मतलब सर्चिंग फॉर जॉब, एंड क्योंकि नहीं हो रहा है, मतलब उस समय सोचा नहीं था कि टाइम लगता है कुछ भी, बट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बैक टू बैक चीज़ें लॉसेज हो रहे थे एंड आई वॉज लूजिंग मनी एंड लॉट। मतलब जैसे मैंने बताया, बहुत नाइवली मैंने बहुत चीज़ें गलती भी करी, बहुत रैंडम डिसीजंस भी लिए जो नहीं, आज में लगता है कि नहीं लेने चाहिए थे कुछ डिसीजंस। आई थिंक वो प्रोसेस है, अगर वो नहीं करता गलती तो आज वो सीखता नहीं उस गलतियों से। तो इट्स अ वेरी मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट के वो गलतियां नहीं थी, मतलब दोज वर लर्निंग बेसिकली, राइट। सो 22-23 में आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर जॉब्स एंड मुझे था कि 12 साल जॉब की है, अच्छी खासी पोजीशन पे था और जॉब तो मिल ही जाएगी, मतलब 2-2.5 लाख रुपए में कमा रहा था जॉब से, तो आई थॉट कि जॉब तो मिल ही जाएगी। आई गेव 4-5 इंटरव्यूज, सारे इंटरव्यूज में मैं टॉप तक गया एंड रिजेक्शन आई 5 इंटरव्यूज में।
तब मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मोटिव है कि मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, मतलब आई थिंक गॉड हैज हेल्पिंग मी के यू कांट क्विट, मतलब आपने 2 साल स्ट्रगल किए, आप जॉब पे चले जाओगे तो आई डोंट थिंक मैं वापस आ पाता कभी बिजनेस में, क्योंकि फिर आप वो क्वेश्चन नेट में आ जाते हो, उस क्वेश्चन नेट को ब्रेक करने में आप रिस्क नहीं ले पाते क्योंकि आपको बहुत डर लगता है उस समय। तो वो नहीं हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आई थिंक गॉड इज सेइंग टू मी दैट के अभी तेरा बहुत कुछ करना बाकी है, ट्राई कर, जॉब में नहीं जाना। तो eventually one fine day in April, I think March of 23, I asked my wife to lend me 20,000 rupees, and I asked her के 20,000 में मुझे आई वांट टू ट्राई इट, मतलब लास्ट टाइम मुझे ट्राई करना है, नहीं होता तो क्या ही होगा, मतलब उसके बाद तो कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो she was also not with me to get back to my job. She was saying me कि you should try, you know, because she has supported so much के उसको हमेशा लगता था कि आई हैव कैपेबिलिटीज एंड आई कैन रन अ ब्रांड एंड ऑल, तो जल्दी हार मान गई। तो आई आस्क्ड करके गिव मी 20,000 rupees. We went to Jaipur, we bought some fabric over there and we created a very capsule collection. Capsule collection is we created 25 to 30 designs and वहाँ पे हमें तब तो वेबसाइट थी नहीं, क्योंकि 8 महीने पहले वेबसाइट फर्स्ट 6 महीने में बनाई थी वेबसाइट, तो बंद हो गई थी। तो उस समय मुझे लगा कि मैं ब्रांड का नाम ही चेंज कर देता हूँ। अब दालचीनी 2 साल के बाद कौन जानता है यार, मतलब कुछ करा तो है नहीं मैंने 2 साल, तो कौन जानेगा। फिर मुझे को लगा कि यार दालचीनी के पेज पे 800 फॉलोअर्स हैं, अब मुझे 800 से बिल्ड करना है, मुझे उस 800 को मुझे बिल्ड करने के लिए 8 महीने लगे, तो मुझे जीरो से 800 तक तो मेरे पास एक लेवरेज है एंड पीपल नो मी, एटलीस्ट 800 लोग तो मुझे जानते हैं। तो आई थॉट कि नहीं, दालचीनी को ही चलने देंगे, क्योंकि वेबसाइट नहीं थी और कोई चांस नहीं था। वी टुक दैट कलेक्शन टू सूरत एंड देयर वाज अ फ्ली कॉल्ड वाइट फ्ली, हमने वहाँ वो पॉपअप लगाया और हमने कहा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, एंड वी वर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट देयर इन 3 days। तो हमें लगा कि यार कुछ अगर आप कर रहे हैं तो आई थिंक कुछ काम है। तो व्हाट वी डिसाइडेड, वहां से हमें पैसा मिला, मतलब हमने जो 20,000 का इन्वेस्ट किया, वहां से हमें 1.5-2 लाख रुपए मिला। So that means you started from a small, like just 20,000 from your wife. Yeah, I started with 20,000. 40 Yeah, lakhs into 20,000, and from there, then again. started from 40, went to 0, then borrowed 20,000। तो 20 से हमें एक रनवे मिला और वहां से हमें कुछ फंड्स मिले कुछ और बनाने के लिए। तो वी केम बैक, वी डिसाइडेड के 1 साल ट्राई करेंगे और 1 साल हम सिर्फ फ्लीज पॉपअप एग्जीबिशंस करेंगे, हमें कैश फ्लो मिल जाएगा, जो सामान वहां बिकेगा वो उसके लिए वो हमें नेक्स्ट फैब्रिक परचेज करने के लिए पैसे मिलेंगे और उससे हम कुछ नया बना सकते हैं। तो हमने यही किया। वी वेंट टू सूरत, वी वेंट टू अहमदाबाद, वी वेंट टू बैंगलोर, वी वेंट टू कैलकाटा, वी वेंट टू लुधियाना, वी वर ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस इंडिया इन फर्स्ट ईयर। हमें टारगेट था कि 2 cities इंडिया की कवर करनी है हर मंथ। तो वाइफ और मैं बैग्स उठाते थे और 5-6 बैग भरते थे और वी यूज्ड टू ट्रेन से ट्रैवल हो रहा है, वो ट्रेन से बहुत ट्रैवल किया हमने, फ्लाइट से ट्रैवल किया बहुत, मतलब खुद सब कुछ। अगर मैं फोटोज भी दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद, तो इट वाज अ मैस, मतलब घर के में ही हमने इन्वेंटरी रखी हुई थी सारी बेड पे, और वहां से हमने स्टार्ट किया और उसी को बैग में भरते लेके जाते थे। तो फर्स्ट ईयर हमने बहुत ट्राई किया। पॉपअप से क्या फायदा हुआ कि एक तो हमें पता चला कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी कौन सी मार्केट में जा रहा है, कौन से डिजाइन, बिकॉज वेबसाइट पे एक कस्टमर को तो आप भेज दोगे, बट वो उसको क्या फील हो रहा है जब तक आप फोन नहीं करके पूछोगे उससे तो वो नहीं बताएगा। पॉपअप पे आप एकदम डायरेक्टली वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट फील कर सकता है, राइट, वो टच कर सकता है, वो आके देख वो सकता है, पहन के ट्राई कर सकता है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, वो आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो कि आज लेके गए हो, अगली बार आए हो तो क्या आपको क्या मजा आया। तो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ रिपीट पीपल, मतलब जो हमें अब जानते थे। जैसे हमारा टारगेट ये था कि अगर सूरत में हमने अभी अप्रैल में किया तो विल कम बैक अगेन इन नवंबर, सो दैट कि हमें पता चले कि रिपीट कितना आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर हमने ये किया, हमने ट्रैवल किया ऑल अक्रॉस इंडिया एंड वी वर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, मतलब और हमें एक फंड्स भी मिलते गए, वी वर एबल टू रोटेट कैश, मतलब वो 20,000 से जो शुरू किया वो आज तक हम उसी से अपना बिजनेस चला पा रहे हैं। तो बीच में फंड्स डाले पर वो कहीं सेविंग आई तो डाल दिए। देन आफ्टर 1 year doing a lot of pop-ups in all across India, mostly major cities में, then we launched our website। अब हमें पता था कि कौन सा डिजाइन आपका चल रहा है, what design you can double down, कौन सा प्रोडक्ट। हालांकि ऑफलाइन मार्केट एंड ऑनलाइन मार्केट बहुत टोटली डिफरेंट बिहेव करती है। ये जरूरी नहीं है कि जो आपका ऑफलाइन में बिक रहा है वो ऑनलाइन बिकेगा, ये जो ऑनलाइन बिक रहा है वो ऑफलाइन बिकेगा।
बट एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि आपका फैब्रिक कैसा है, कस्टमर उसको क्या परसीव कर रहे हैं, उनको क्या टच एंड फील आ रहा है. तो दैट वी डिड फर्स्ट ईयर पूरा हमने किया. देन आफ्टर 1 year वी स्टार्टेड विद द वेबसाइट, देन धीरे धीरे परफॉर्मेंस मार्केटिंग. क्योंकि मेरा ये शुरू से पक्का था कि मुझे फर्स्ट डे से अगर मैं बिजनेस दोबारा स्टार्ट करूँ तो आई डोंट वांट टू बर्न ऑन परफॉर्मेंस. मुझे नहीं करना था वो 1 साल के लिए. मुझे अगर वेबसाइट को होल्ड करना था तो आई टुक दैट कॉन्शियस डिसीजन कि मैं होल्ड करूंगा. वी विल ट्रैवल, मतलब दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज वर्किंग फ्रॉम होम, सो शी कुड स्पेयर आउट वीकेंड्स और पॉपअप्स मेनली वीकेंड्स पे ही होते हैं. तो वीकेंड पे शी यूज्ड टू सपोर्ट मी. तो हम 2 जने खड़े होते थे और सामान बेच रहे होते थे यार. एंड उससे हमें अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला. आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो हमें अब जानते हैं पॉपअप के थ्रू, क्योंकि हम लोग अब 2-2.5 साल से मार्केट में भी हैं, वेबसाइट पे भी हैं. तो नाउ पीपल नो अस कि दालचीनी कौन है, दालचीनी क्या करता है. तो इतने लोग हमसे आते हैं रिपीट मिलके जो हमारी स्टोरी जानते हैं. जिस कस्टमर ने, मुझे आज भी उसका नाम याद है, 21 में जब मैंने दालचीनी शुरू किया था, उसने हमारे से परचेज करी थी. तो वो कस्टमर ने मुझे 8 महीने बाद मैसेज किया था कि वाई यू हैव क्लोज दालचीनी. तो उसको फिर मैंने रीच आउट किया कि हमने स्टार्ट किया. तो वी हैव पीपल के जो हमें इंटरेक्ट करते हैं उतने पुराने कस्टमर. एंड दिस इज ओनली द वे कि आप कस्टमर के जितना क्लोज रहोगे, उनकी पेन पॉइंट्स को जितना क्लोजली सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट इज द पॉइंट. फिर हमने 21 में ये करा, 23 में सॉरी ये करा, एंड फिर विद दैट 20,000 आज उसी रन रेट के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को और अपने अब धीरे धीरे और काफ़ी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया परफॉर्मेंस मेटा में. अब धीरे धीरे पॉपअप हमने धीरे धीरे कॉन्शियसली कम किया, बिकॉज पॉपअप आपको रनवे देता है, मतलब कि आपको कैश फ्लो भी देगा, बट पॉपअप्स आर वे टू टायरिंग, राइट. आप ये सोचो कि आपको, वी आर गोइंग टू बैंगलोर दिस वीक संडे एज वेल ऑन. तो कल ही सामान गया है, आपको सामान की इन्वेंट्री करनी है, आपको सामान भेजना है. व्हेन यू हैव अ वेरी स्मॉल टीम जहाँ 1-2 लोग ही आप काम कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी टास्किंग थिंग. आपको जाना है और आपको नहीं पता कि आपके पूरे दिन वहाँ खड़े होकर कस्टमर आएगा कि भी नहीं आएगा. तो लकीली हमारे साथ वो नहीं हुआ. कुछ कुछ एग्जीबिशन में हुआ, 1-2 हमने फेस करी हैं, बट वो बहुत टायरिंग भी हो जाता है. आप पूरे पूरे दिन रहते हो, इट्स मतलब आप टाइम बहुत लूज करते हो, राइट. आप संडे को रिलैक्स कर सकते हो और आप कुछ और काम कर सकते हो, बट यू आर स्टैंडिंग एट अ पॉपअप वेटिंग फॉर कस्टमर टू कम. तो उस वे में टायरिंग भी होता है. तो बिकॉज नाउ द बिजनेस वी आर टेकिंग टू नेक्स्ट लेवल, सो वी हैव कॉन्शियसली डिसाइड के वो टाइम को इतना कंज्यूम नहीं करना. जो जो एग्जीबिशन में पता है पॉपअप अच्छे हैं, जो हमारी मार्केट के लिए अच्छे हैं, वी डू देम रेगुलरली. और अब धीरे धीरे हम पॉइंट ऑफ व्यू से कम कर रहे हैं, ऑनलाइन हमारा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो पीपल शुड ट्राई दिस. एंड एवरी पॉपअप, एवरी एग्जीबिशन का कोई 2 दिन की होती है, कोई 3 दिन की होती है, कोई सिंगल डे की होती है. दे चार्ज अकॉर्डिंगली. एंड but I think there are a lot of pages, a lot of exhibition. You can talk to brands, you can the brands you follow, आप उनको देख सकते हो कौन सी एग्जीबिशन में जा रहे हैं. बट द मेजर थिंग विच यू नीड टू नोट एज अ फाउंडर एंड एज अ ब्रांड, दैट डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर, राइट. अगर आप जा रहे हो किसी सिटी में, तो आप उसके पेज में सब कुछ दिखता है यार, आपके इंटरनेट में किस ब्रांड ने पार्टिसिपेट किया है. यू हैव टू जस्ट मैसेज देम ऑन इंस्टाग्राम. और बहुत ब्रांड हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं. यू हैव टू आस्क देम कि आपका रिव्यू कैसा था, आपने कितनी सेल करी. या नंबर नहीं बताएंगे अगर, तो ये बता देंगे कि फुटफॉल है उस एग्जीबिशन में. तो आप एक प्रिपेयर्ड होगे कि आपका जो नीश है वो वहाँ सेल हो सकता है कि नहीं. हो सकता है आप एथनिक बेच रहे हो, बट उस वहाँ आते ही यंगस्टर्स हैं, तो वो आपका एथनिक खरीदेंगे नहीं. या आप नॉर्मल यूर टारगेटिंग जेनजीज और वहाँ नहीं आते वो लोग, तो आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसे वेस्ट होंगे, और यू विल बी डिसहार्टेंड. मतलब आप, हो सकता था वो पैसे कहीं और लगा सकते थे, पर आप एक ही में हार जाओगे कि यार मेरे लिए नहीं है. पर आपने सही चीज चुनी नहीं, इसलिए आपके लिए नहीं है. तो आप अपना पूरा रिसर्च करके जाओ. टॉक टू पीपल, टॉक टू फाउंडर्स. आई थिंक हमने भी ऐसे किया था. मतलब शेमलेसली लोगों को मैसेज करना, पूछना, और लोगों को हेल्प करते हैं. 10 में से 8 लोग मैसेज करते हैं. दिस कम्युनिटी सो स्ट्रॉन्ग के हर कोई बिलीव करता है कि एक दूसरे को हेल्प करना है. तो वो ये ऐसे ही चलता है. मतलब यू हैव टू बी ब्लंट, यू हैव टू आस्क पीपल. मतलब बिना रिसर्च करके मत जाओ कहीं भी. मतलब इट्स अ बिग रिस्क आल्सो. पैसे इन्वॉल्व है. अ लॉट ऑफ पीपल आर चार्ज अ लॉट. 1-1 लाख 1.5 लाख तक के 3 दिन के पैसे होते हैं. जब तक आपने रिसर्च नहीं किया, आपके पैसे भी जा रहे हैं. मतलब यू आर गिफ्टिंग. मतलब वहाँ पे आप जाके सेल नहीं करी, आपने कपड़े भी फ्री में देके आया, रेंट भी दे दिया. तो वही पॉइंट. थ्रू आउट द स्टोरी हमने बस सुना है that your wife has always been there as a supporting figure,
like we hear about her here and there, here and there, here and there. But I just want to know when you thought that okay, fine, मैं अभी ये job छोड़ूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, resignation दे दिया. What was your wife's reaction at that time? Yeah, basically you like without being funded and all of that, you were Yeah. actually खुद से ही कर रहे थे हम. so decision was tough. She also knew कि मैं safe खेलता हूँ हमेशा, मैं risk नहीं लेता. तो एक क्वेश्चन नेट जैसे मैंने आपको बताया, आई गॉट वीएस मनी एंड तो शी वाज आल्सो सपोर्टिव के यू शुड ट्राई एटलीस्ट. एंड मतलब और वो एज ऐसी थी कि आई वाज 34 आई गेस. तो अगर उस समय नहीं करता तो आई थॉट कि वो कभी करूंगा. मतलब वो जो एज भी जाती है, आप कभी करोगे फिर ट्राई. दालचीनी मुझे लगता है वो मेरे से ज़्यादा वो दालचीनी को मानती है, मतलब अभी भी. और शी अभी भी शी इज़ वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, शी इज़ गोइंग टू ऑफिस ऑल 5 days इन बॉम्बे. सो बट कहीं ना कहीं दिमाग उसका रहता है दालचीनी में. एंड एज आई टोल्ड कि फर्स्ट 2 years वी वर ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस इंडिया. सो डूइंग जॉब फॉर 5 days मंडे टू फ्राइडे, देन सपोर्टिंग मी ऑन सैटरडे एंड संडे. मतलब आप सैटरडे संडे को रिलैक्स करते हो, राइट? आप 5 दिन इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आपको चाहिए होते हैं 2 दिन एटलीस्ट कॉर्पोरेट में चाहिए होते हैं आपको. शी बीइंग अ लॉयर, उसके वर्किंग आवर्स बहुत हेक्टिक हैं, सब कुछ हेक्टिक है. एंड शी इज ऑल्सो एट अ ग्रोइंग स्टेज ऑफ हर कैरियर. पर उसने एक कोई कभी भी कुछ ऐसा सवाल नहीं पूछा कि, या सवाल बोला नहीं कि मैं नहीं जा सकती, तुम किसी और को ले जाओ. मतलब शी वॉज मोर ईगर देन मी के नहीं यहाँ ट्राई करते हैं. शी वॉज मोर ईगर टू आस्क पीपल कंपेटिटर्स के आपका फ्ली कैसे गया, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं. तो शी वॉज अ फेस. मतलब वो ही बात करती थी ब्रांड से, मतलब मेनली के फ्लीज में हम जब जाते तो शी यूज टू कॉल पीपल एंड आस्क देम के आपका फ्ली कैसा हुआ, पॉपअप कैसा हुआ. तो 1 year she supported me like hell. Obviously monetary तो she is working right now, she is helping a family because एक बंदे को काम करना है. These days also shifting to Bombay also it's a very 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 tasking for us also, because me building a business from zero, because there my vendor was set, right? I was getting garment stitch. I had embroiders units with me. I have contact for fabric one. यहाँ तो मेरे लिए I totally new था. I had to everything search my network from zero from here. And she also coming to an office, new office, where she was working from home from last 4 years. तो वर्क फ्रॉम होम करना 4 साल और एकदम ऑफिस में आना, वेयर Big change. here in Bombay you have to travel 1.5 2 hours to go to office, and उसके बाद आके दालचीनी में सपोर्ट करना. तो आई कांट मतलब थैंक कर, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग एंड व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, तो यू शुड नॉट फॉरगेट दैट आपके बहुत फैमिली फ्रेंड्स उस स्ट्रगल कर रहे होते हैं. Yeah. वो बोलते नहीं है, बट वो आपसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं. आप ये सोचो, मैं तो जॉब छोड़ के बिजनेस ही कर रहा हूँ, मतलब मैं तो बिजनेस आगे करता हूँ. बट शी इज वर्किंग ऑल्सो, शी इज सपोर्टिंग ऑल्सो, शी इज लुकिंग आफ्टर बिजनेस ऑल्सो, शी इज लुकिंग आफ्टर फैमिली ऑल्सो. सो मतलब गट चाहिए यार. मतलब नो वन कैन डू. मतलब मेरे से भी आप पूछोगे तो मैं भी, मतलब आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हो, बट इट्स वेरी टफ ऑन अ पार्टनर ऑल्सो टू के सब कुछ छोड़ के सब कुछ करके. मतलब आपको पता है कि आप ट्रिप्स नहीं ले सकते, आपको पता है आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको पता है आपको, क्योंकि बिजनेस आपको 24/7 मांगता है, राइट? यू कांट लीव दैट. Demands a lot of you. तो लीविंग दैट, डूइंग योर जॉब, इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग काइंड ऑफ अ थिंग समटाइम्स. मतलब फ्रस्ट्रेट हम लोग दोनों हो जाते हैं कभी कभी कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. बट अब हाइंडसाइट में सोचते हैं कि बनाना तो है यार, इसको बड़ा बनाना है, और आज नहीं बनेगा तो कल तो बनना ही बनना है. इसको कहीं कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ को. तो बस वही थॉट प्रोसेस के साथ, वही मोटिवेशन के साथ रोज चलते हैं. मतलब शी सपोर्ट्स मी अ लॉट, मतलब डेली एक्टिविटी में. Basically आज भी दालचीनी में लोगों को बोलते हैं ना, every successful man के पीछे there's a successful way. So I think your story proves it right over here. उन सबको लगता है कि वो ब्रांड में फुल टाइम वही है. मतलब उससे वो पता चलता है कि उसकी डेडिकेशन कितनी है ब्रांड में. मतलब फ्लीज पॉपअप में वो मेरे साथ ही होती है, तो लोग उसको जानते हैं कि वही फेस है ब्रांड. तो इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो. Sir, food and this you are doing together, right? So how did you think that, which niche was shortening? Like, how did you narrow down on the niche? Like, what was the thought process when you were finalizing the niche? कि भाई मुझे इसमें ही करना है, ये थोड़ा सा गिव अप करना है. दालचीनी आपने गिव अप किया, but then again you came back to it. Like, what was going on in your mind at that point of time? मतलब एज अ मैन, मतलब कि आई पर्सनली, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद नहीं है. मतलब और मुझे लगता है कि ज़्यादातर मैन को नहीं होती है पसंद ऑनलाइन शॉपिंग. दे टेंड टू ट्राई थिंग्स ऑन एंड देन, बिकॉज हमारे लिए फिट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? अगर आपको फिट पसंद आ जाती है कहीं किसी ब्रांड की, तो यू बिकम लॉयल टू दैट ब्रांड एंड यू विल परचेज एन नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट ब्रांड. तो मुझे एक मतलब मार्केट में
गैप कह लो या कुछ, आप मतलब एक नीश देखा था कि आई डोंट डिडंट यूज टू फाइंड गुड शर्ट्स, राइट? मतलब शर्ट्स मिल हर जगह कोई ना कोई बनाता था, बट एक कुछ एलिमेंट्स मुझे चाहिए होते थे। मतलब आई वांटेड, मतलब मेरे हमेशा से ये था, मेरा जब भी मैं किसी ओकेजन के लिए ड्रेस होता था, ये मतलब वियर्ड कह लो कि तो आई वांटेड कि मैं ऐसा ड्रेस हूँ कि मतलब लोग यार तारीफ करें यार कि कपड़े पहने हैं। तो आई फ्रॉम दैट फर्स्ट डे आई वांटेड कि दालचीनी, वी ऑल्सो से इन दालचीनी दैट वी एड स्पाइस टू योर वार्डरोब, बट वी गारंटी यू दैट वेन एवर यू वेयर अ शर्ट यू विल गेट 100 ऑफ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज आई बिलीव कि आपका कॉम्प्लीमेंट किसी से भी मिलता है, आपका डल, आप पूरे दिन मायूस हो, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देके जाता है तो आपका दिन बन जाता है, Right. आप यू योर डे बैटन। तो वो एक फीलिंग हमेशा से थी मेरे पास कि थोड़े कपड़े ऐसे बनाने के आप, अगर आपने वो शर्ट पहनी है दालचीनी की, तो आपसे लोग आके पूछेंगे कहाँ से ली, और शर्ट बढ़िया लग रही है यार, कहाँ से ली तुमने। तो एक वो एक फीलिंग, मतलब एक कमिंग आउट ऑफ द फ्रॉम द क्राउड, मतलब क्राउड थोड़ा अलग, आप लोग आप कैसे ड्रेस्ड अप हो, वो एक फीलिंग हमेशा से थी। एंड आई वी वांटेड टू क्रिएट अ जेंडर न्यूट्रल काइंड ऑफ अ ब्रांड, बिकॉज वो भी मेरे को पॉपअप से स्टिंग था यार, मतलब फीमेल यूज टू कम एंड दे यूज टू से कि हम तो अपने यार हस्बैंड की शर्ट्स पहनते हैं, हमें अपने शर्ट्स समझ नहीं आती, मैं तो अपने हस्बैंड की टी शर्ट पहनती हूँ, हस्बैंड की शर्ट पहनती हूँ। तो एंड वी न्यू दैट के फैशन डजंट हैव जेंडर, सो वी Yeah. वांटेड टू क्रिएट के हम ऐसे कपड़े बनाए, ऐसे सिलुएट बनाए, ऐसे साइजिंग बनाए कि बोथ मेन, मेल फीमेल बोथ कैन वेयर एंड दे कैन एंजॉय। मतलब बहुत लोग हमारे पास कपल आउटफिट्स लेने आते हैं कि सेम शर्ट मेन के लिए, वी हैव सिमिलर शर्ट इन फीमेल कैटेगरी आल्सो, तो वो पेयर करते हैं। दे इवन वी डोंट डू फॉर किड्स, बट क्योंकि हमारे डिजाइन ऐसे क्वर्की हैं, प्रिंट्स ऐसे क्वर्की हैं, एम्ब्रॉयडरी ऐसे क्वर्की हैं, तो वी विल टेंड आस्क, दे आस्क अस कि किड्स के लिए क्यों नहीं है, तो उनके लिए वो कुछ, कोई ट्रिप पे जा रहा होता तो हम किड्स के लिए बना देते हैं कि फैमिली का एक टुगेदरनेस एक हो जाती है। तो या दिस आपको founder led marketing, like you felt that actually brought Dalchini on the map, am I correct? So I recently saw your post live lately at this age, and it was, I believe that got a lot of insights, because I love the comments that were coming in. I believe that brought insights to your page. मैं पर्सनली उसको मार्केटिंग की तरह नहीं देखता एज अ फाउंडर, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू सो मच, मतलब फिर कुछ देखा है 2-3 साल, बहुत मिस्टेक्स करी हैं, उनसे सीखा है, बहुत पैसा गवाया है, उससे सीखा है। एज अ फाउंडर यू हैव टू बी रॉ, राइट? कंज्यूमर जो आपको देख रहा है सोशल मीडिया पे, वो आपको 1 सेकंड में जज कर लेगा अगर आप फेक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, राइट? दे कैन जज यू क्वाइट। और मुझे ऐसा लगता है कि पीपल डोंट बाय योर प्रोडक्ट दीज डेज, मतलब वो प्रोडक्ट तो हर कोई बेच रहा है यार, मतलब कोई शर्ट, सेम टी शर्ट हर XYZ ब्रांड के पास है, कुछ ना कुछ ट्वीट करके, बट कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी स्टोरी है, व्हाट वैल्यू यू आर गिविंग टू योर कस्टमर अदर देन क्लोथ्स आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो जो पोस्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, वो ऑल ऑफ अ सडन एक संडे को आया था दिमाग में, वो मैं हर संडे मैंने प्रैक्टिस बना ली है, हर संडे को पोस्ट जाता है। तो वो रॉ है, वो मेरे अंदर की बातें निकलती हैं, बस एक संडे को मॉर्निंग को उठ के, वो कुछ नहीं शुरू हुआ था कि मुझे प्लान करना है या मुझे कुछ ब्यूटिफिकेशन करनी है या मुझे पोस्ट करना है, वो कुछ ऐसा शुरू नहीं हुआ था। एक मेरा वे आउट है टू लेट इट आउट, राइट? तो आई जस्ट रोट इट डाउन एंड आई, मुझे अच्छा लगा वो, तो आई थॉट के जिस स्टेज पे मैं हूँ अपने करियर के, बिल्डिंग अ ब्रांड, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम, राइट? ब्रांड को बिल्ड करना है, बहुत लोग वो स्टेप भी नहीं ले पा रहे हैं जो स्टेप मैंने लिया है, या जो बहुत लोग सोचते भी हैं। लाइक मैं भी एक टाइम पे आई वाज अ गाय हु यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ सेफ गेम्स, मतलब मैं, मेरे डिक्शनरी में रिस्क फैक्टर ही नहीं था जब मैं जॉब में था, मतलब जब भी कोई सेफ्टी नेट दिखता था मुझे, मेरे को सेफ ऑप्शन ही लेना पसंद था। तो वो रिस्क मैंने भी लिया, बहुत लोग लेना चाहते हैं, और बहुत अ लॉट ऑफ पीपल, आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ अननोन पीपल, मतलब ऑन डेली बेसिस मैसेज आते हैं कि आप ये कैसे कर रहे हो, हम भी स्टेज पे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इश्यूज मैंने फेस करे हैं, अगर कोई सामने वाला स्टार्ट कर रहा है, अगर वो थोड़ा जल्दी उस इश्यू को पता चल जाएगा उसको, तो वो मिस्टेक्स थोड़ा कम करेगा। तो देर, मेरा पॉइंट है कि मतलब इफ यू कैन लेट पीपल नो योर जर्नी, उससे वो लोग कितना सीख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, दैट इज द मेन थॉट। एंड वो मैं हर संडे करता हूँ, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आता रहता है, टाइप इट आउट एंड आई नाउ पोस्ट इट आउट के, कोई प्रिटेंड नहीं करता मैं किसी चीज की, मतलब मेरा सिर्फ थॉट है कि कुछ लिख के किसी को अगर कुछ उससे थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाता है तो इट्स अ गुड थिंग है। मतलब वी आर हियर इन अ सोसाइटी दैट
Right. want to help people who want to grow, right? और अगर हमने कुछ mistakes करी हैं लाइफ में तो they can learn from us, so it's So- and start a series दिल की बातें on yeah. See, he's giving you content Yeah. ideas. You can मैं go. सोच रहा हूँ यार तुम मुझे अपने पर्सनल ब्रांड भी शुरू करना है. Anyways, you're putting yourself out on Dalchini, which is amazing. Like, I love that, you know, that there is so much more story behind Dalchini than just a clothing brand. See, the brand owners are never free. Even during a live podcast, he's on his phone trying to figure out maybe his delivery or maybe, I don't know, maybe an urgent customer feedback. So you have to be alert when you business is going. What's We it? have D2C going on live in front of us. This is the thing of D2C. You always got to be available. You always have to be ready. That's the top notch priority. You know, this is the thing. Here's Dalchini behind the camera. See, we got a glimpse of your journey throughout. When was the time where you felt like, you know, like in this entire journey, when was the moment where you felt like that was the toughest, you believe, like the toughest, where you almost cracked, gave up everything, walked away from Dalchini? There were two moments, I would say. That one was in 22 when I lost all my saving. When I thought के 2 साल job, मतलब I left a well settled job, right? I was doing quite good in job and leaving that and doing a lot of mistakes. इतने losses करने के बाद I felt के नहीं होगा यार, मतलब I should quit and I should get back to my job and start again that life. मतलब मैं खुश था. I was not sad when I was working. I was enjoying my job. I was good at my job. तो ऐसा नहीं था कि मैं फ्रस्ट्रेट था इसलिए मैंने छोड़ा. बट ये था कि हाँ कुछ अपना करना है, अभी टाइम है इसलिए करते हैं. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज व्हेन यू सी योर लव वन सफरिंग तब आपको मतलब लगता है कि यार मतलब क्यों ही, मतलब आप अपने लिए तो सोच लेते हो बट आपको लगता है कि आप पूरे फैमिली फ्रेंड्स भी परेशान होते हैं आपकी वजह से. मतलब व्हेन यू स्ट्रगल एंड स्ट्रगल कुछ मैं उसको बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ उस चीज़ पे. मतलब वो कोई बहुत बड़ी स्ट्रगल नहीं थी. मतलब पीपल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ एंड बहुत लोगों से हम काफ़ी ऊपर हैं और मतलब कुछ भी नहीं है. आज के दिन में हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है. हर इंसान अपनी लाइफ में हासिल कर रहा है किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी जर्नी में. मतलब बट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर एवरी टाइम, राइट? के बस एक बिलीफ, पेशेंस. And I felt after 6 months of doing business that I thought that business is a process, right? You have to follow same boring things daily. You have to do those boring things daily, and you have to be patient on that. And एक टाइम आएगा जब कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत काम कर रहे होते हो, बहुत मेहनत कर रहे होते हो, एंड यू आर सो क्लोज टू बस फटने के लिए. मतलब कि आप बस अब ऊपर आपने उड़ान लेनी है, आप उसी समय क्विट कर देते हो. आप मतलब यू आर सो क्लोज कि आपने अब आप यहाँ से ऊपर ही जाना है, बट आप उस पॉइंट पे क्विट कर देते हो. तो आई ऑलवेज थॉट के टाइम आना है, सबका आना है, मतलब यू हैव टू बी पेशेंट. और बिजनेसेस दे आर नॉट मेड इन एन ईयर टाइम, दे आर नॉट मेड इन 2 years 3 years. बिजनेस को ग्रो बनाने के लिए 5-10 साल चाहिए. आप लोग जो इंटरनेट पे हम लोग सब देखते हैं, ओवरनाइट स्टोरीज हमें लगती हैं, बट कोई भी ब्रांड अगर बना है, कोई कंसिस्टेंट ब्रांड बना है तो उसको 5-10 साल लगे हैं, वो तभी वो ब्रांड बना है आज की डेट में. मतलब कोई भी आप ब्रांड के बारे में सोचोगे तो उसने 10 साल लगाए हैं, मेहनत करी है, लगाई अपनी. तो बिजनेस 1-2 साल में नहीं बनता. आपको पेशेंटली काम करना पड़ता है, आपको चेंजेस करने पड़ते हैं अपने अंदर, बिजनेस के अंदर. धीरे धीरे हर पॉइंट पे बहुत चीज़ होती है, आपको रिवैम्प करना है जीरो से. आप दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे आओ, दोबारा से रिवैम्प करो. एंड द सेकंड पॉइंट वाज लेटली व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे. सो मतलब आई वॉज फीलिंग दैट मुझे पूरा कुछ स्ट्रक्चर दोबारा से बनाना है. देयर इज नो नेटवर्क हियर, सब कुछ मुझे जीरो से स्टार्ट करना है. एंड एक पॉइंट आया कि मतलब यू एज अ फाउंडर यू ब्रेक डेली, राइट? मतलब आपको लगता है कि यार बहुत हो रहा है यार, अब नहीं हो सकता. बट आपको वो कंसिस्टेंटली अपनी कॉन्शियसली दिमाग को समझाना है कि नहीं, सब कुछ बढ़िया है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया होगा. आज अपना है नहीं है, कल तो बढ़िया ही होगा, सब कुछ बढ़िया होगा. तो वो आपको समझाना पड़ता है. तो बॉम्बे इनिशियल डेज वर टफ बिकॉज आपको जीरो से जब नेटवर्क बनाना है, आप किसी को जानते नहीं हो यहाँ पे. एंड आपको लगता है कि यार आप फिर भी आपने एक स्ट्रगल करी, 2 साल बिजनेस को ग्रो करा, एंड वी वर स्केलिंग एट गुड पेस लास्ट ईयर. आप फिर आके फिर आपको जीरो क्यों जाना है, मतलब नीचे क्यों जाना है? आप तो अच्छे एक कर्व पे आ चुके थे, आप कॉन्शियसली खुद नीचे जाने के लिए आए हो क्या? वो लगता है. बट उसके लिए कोई मतलब हाइंडसेट में अगर देखें तो बहुत कोई रीजंस आए होंगे जो हम बॉम्बे आए हैं. फॉर नेटवर्क ओनली, फॉर फैशन इंडस्ट्री ओनली. तो एक पॉइंट है कि जो दिमाग में आता है
तो या आई कैन से दीज टू मोमेंट्स वर टफेस्ट फॉर मी, बट अब मतलब ये तो फाउंडर को अगर काम करना है एंड इफ यू हैव टू ग्रो द बिजनेस, सो यू हैव टू थिंक दैट इट्स अ प्रोसेस एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर कंट्रोलेबल, मतलब यू हैव टू, आप डेली, आपको डेली नए चैलेंज आएंगे, सुबह आपको ऑफिस आना है तो कोई एक नया चैलेंज आता है, बट आपको पता ही आना है, मतलब आप अपना काम करते जाओ और बस लगे रहो, मतलब अब ये सीखा कि लगे रहना है बस। फन सेगमेंट फॉर द ऑडियंस, आपको लगता है कि यू नो दिल्ली एंड बॉम्बे इज ऑलवेज इज टू मच ऑफ यार मुझे तो है, मुझे तो व्हाट डू यू फील लाइक? मुझे जब मैं बॉम्बे पहले आता था 2-3 दिन के लिए, तो मुझे बहुत वाव फीलिंग आती थी यार, सही है, बढ़िया है अपना, मतलब बढ़िया लाइफ है बॉम्बे, बट जब आप रहते हो यहाँ पे और आते हो एंड व्हाट आई फेल्ट, मतलब अब और बहुत लोगों से मैंने सुना भी है कि बॉम्बे पहले और अब में बहुत चेंज हो जाएगा। आप रेंट इतना देते हो, राइट, आप हर जगह रहते हो, बट रोड्स की हालत मॉनसून में या कहीं भी जाओ आप, आपको वो नहीं मिलती है, मतलब आई कम फ्रॉम नोएडा, दिल्ली, जहाँ पे रोड्स बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, मतलब बारिश होती है बट आपकी रोड बिल्कुल साफ रहती है, बट और वहाँ और यहाँ पे आपके प्रीमियम भी देते हो, मतलब यू हैव मतलब कॉस्टलीस्ट रियल एस्टेट इन द कंट्री, मतलब सबसे महंगी, आपको इतने खोखा लेने के लिए आपको 30,000 40,000 दे देते, घर रहने के लिए मतलब 60-60 1 लाख से कम घर नहीं है, बट आपको वो फील आती है कि आप इतना प्रीमियम जब जिस सिटी में दे रहे हो तो उसके बेनिफिट कुछ मिलने चाहिए, तो वो आई फेल्ट के नहीं है, बट उसके अलग बेनिफिट्स भी हैं, दिस कॉल्ड सिटी ऑफ ड्रीम्स, तो बहुत लोग अपना सपने पूरे करने आते हैं शहर में, हम भी आए हैं शहर में अपने सपने पूरे करने, देखते हैं कहाँ जाते हैं। So yeah, Bombay or city of dreams, or a hot take, Bombay or city of यार cold? बारिश बहुत होती है बारिश, मतलब we this year rain started early, From हम लोग बारिश इस साल बारिश जल्दी भी शुरू हुई, सब लोग ही बोलते हैं, हमें तो पता नहीं था, मई में स्टार्ट हो गई, हम अप्रैल में आए, तो हम तो तब से अप्रैल में जब से आए तब से बारिश शुरू हुई है, अब 2-3 दिन पहले धूप निकली है, तो ऐसा लग रहा है कि क्या कहाँ आ गए हैं, बढ़िया, बस बोलते हैं ना कि जिसने बॉम्बे का ट्रैफिक और बॉम्बे की बारिश झेल ली वो बॉम्बे का हो गया, तो वी आर ट्राइंग के बॉम्बे की रहे कि हम बॉम्बे के रहे बस, It came straight from his heart, मेरे से बारिश बहुत होती है। बट ये बारिश में शहर रुकता नहीं है, मतलब city that never stops, city Yeah, that never sleeps, sleeps. but yeah, a city of potholes and other things as well. But Yeah, people come to fulfill their dreams, and Yeah. I believe that Dalchini is one of prime example that you may move from the national capital to Mumbai, and Mumbai will take you for rounds, will Yeah. literally bury you to the ground, but we find a way up. And Dalchini is a living example of that, to be Right, honest. right. Now that we know that you decided to go into clothing, but I can't wrap my head around Dalchini. Like, why the name Dalchini? Because it's not, I mean, I don't know if I can associate Yeah. spice. I mean, yeah, spice the wardrobe is something great, Yeah. but why do you feel Dalchini was the right fit for outfits? So from very first day, जब मैंने सोचा था कि मैं क्लोथिंग ब्रांड्स खोलूंगा या चलाऊंगा, देयर वाज अ सिंगल थॉट इन माय माइंड कि मुझे कुछ ऑफ बीट नेम रखना है, तो मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं कि वाई दालचीनी, तो एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों के पास, और वो दे स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, so it's a conversation starter kind of a thing, right? और I always wanted to keep an offbeat name. I thought कि जब एप्पल फोन का ब्रांड हो सकता है, मैंगो कैन बी अ क्लोथिंग ब्रांड, सो दालचीनी कैन बी अ क्लोथिंग ब्रांड, एंड मुझे हमेशा से लगता था कि देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड जो देयर आर समथिंग लंडन, राइट, व्हेन दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन आगरा, कुछ मिलानो व्हेन दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिल्ली एनसीआर, एंड देयर आर कार्लोस व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन लुधियाना, तो जब वो ऐसा नाम रख के सकते हैं, इंडियन में मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वी कैन कीप एन इंडियन नेम, एंड वी वांटेड टू ग्रो ग्लोबल फ्रॉम द फर्स्ट डे, सो वी थॉट के एक इंडियन नेम को ग्लोबल लेके जाएंगे और उस रूट्स इंडियन में रहेंगे। Okay. तो आई डिडंट वांटेड टू कीप समथिंग कुछ लंदन रख के और वो बन यहीं रहा है और उसको एक फैंसी नेम दे के उसको दिखाया जाए, क्योंकि इंडियन रूट्स के साथ ही वी वांटेड टू मूव एंड, और सबसे पहले ये बात थी कि ऑफबीट नेम रखना है, कि कोई सोच ही नहीं पाए कि दालचीनी कोई फूड से ही सोचेगा और हमारा ब्रांड क्लोथिंग निकलेगा, तो ये मेन रीजन था। As we continue, I feel I love the outfit you're wearing, but could you just tell us more about this? I guess this is one of your best sellers, isn't Yeah, it? so this is our recent launch, our collection which we have launched for this Diwali. It's Teen Patti 3.0. I love playing cards during Diwali. A lot of people play cards, right? तो दिवाली के टाइम हमारा हमेशा एक मोटिव रहता है कि give something to a consumer के उसको वो nostalgia feel हो, right? कि वो कार्ड्स पार्टी में अगर जा रहा है तो you can see there are spades and clubs which are embroidered on this shirt, and हमने शर्ट कुर्ता अभी निकाला है इस बार, तो this started with 2 years back when we launched our first collection तीन पत्ती, हमें लगा था शायद उसका पीस So do होगा we यहाँ have- पे। Yeah, we have that in piece over here.
So this was a shirt which we thought ke This is 1.0. so this is the first First shirt shirt, of the collection, तीन पत्ती, and this shirt name is Spade of Heart. और spades हैं, इसमें hearts हैं, and there's a combination और हमने यहाँ कुछ डिटेलिंग वगैरह दी हुई है, प्लेकेट में कुछ डिटेलिंग दी हुई है. तो ये हमने दिवाली में लॉन्च किया था 23 में. Okay. और वी थॉट के दिवाली के बाद तो कौन खरीदेगा इसको, मतलब ये शर्ट मेनली लोग दिवाली पार्टी में पहनेंगे, उसके बाद कौन खरीदेगा. बट टिल डेट दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स. आज भी हमें इसके वी हैव सोल्ड 10,000 पीसेज ऑफ जो दिस शर्ट. आज भी हमें इतने ऑर्डर आते हैं इन शर्ट्स के, इतने ऑर्डर आते हैं कि ऑफलाइन चले जाओ, ऑनलाइन चले जाओ, आज भी इस शर्ट के सबसे ज्यादा ऑर्डर है. तो वी ट्राई कि हम लोग हर ईयर इसी शर्ट में तीन पत्ती के अगेंस्ट में एक्सटेंड करते रहे. तो तभी तीन पत्ती का हमने 3.0 निकाला इस बार के ये भी कुछ नया इसमें वेरिएशन लेके आते हैं. So I think this is the really Diwali ready collection. So this Diwali, if you guys are planning, I think this looks really Yeah, nice. you can So shop these are the Yeah, we have launched short kurtas also. This time we have launched kurtas also for you guys, and these are all unisex shirts. Oh, we nice. we always think that fashion has no gender, so we believe in that, and we make clothes gender neutral clothes. के male female both can wear and both can style these. So ये हमारे mainly female male दोनों लेते हैं और they love these shirts basically. Now, on Samuel is smiling. I think he's going to buy one definitely. I know where I have to go next. Anyways, but like I believe we even got embroidery. Right? Yeah, these have all embroidered motifs. plus this. And even our embroidered shirts are quite famous. This Amazing. is also one of our favorite pieces. Just piqued my Our- interest. It's the shirt name is really cool. the shirt name is Peek and See, where we have kept an elements of surfboards, fishes, and all. So one thing which we associate with Dalchini is nostalgia, right? Okay. We say that whenever you wear a shirt, we try to impinge your that thought in your mind that yes, अगर आप last vacation में कहीं गए होगे तो आपने mountains, you love sea, तो आप relate कर सको, right? So in every piece which we have created for Dalchini, we have tried to add a quirk element in that with embroideries, beat prints, beat. अगर आप plain silhouettes भी बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ quirky element है. और उसको एक ऐसा nostalgia से like with तीन पत्ती, we are resembling them with the cards, people playing cards. Yeah. This with vacation, right? People tend to go vacation. और vacation ना भी हो, brunches पे, lunches पे जा रहे हो तो people love mountains, people love seas. तो उसकी वजह से हम लोग we try to implant nostalgia feeling in everyone's who buy our clothing basically. I think my next Goa trip looks like this. I'm going in next month. I think I better order something. I think when we were talking to him, he told us about starting a food thing Yeah, also, right? So does it inspire from there something? वहाँ से चाहते Yeah, so the story is quite different. मतलब अभी तो दालचीनी 2-3 साल से stable है, but if I talk about 21, the first brand which I launched was a food brand with my cousin and the co-founder. So and simultaneously Dalchini was started 2 months back. So there was two D2C brand which were running simultaneously, and the name of the brand was Stokeri. We were doing some mindful ingredient kind of a thing in that brand. So 1 साल हमारा वो फूड ब्रांड चला, क्लोथिंग ब्रांड दालचीनी चला. बट एक पॉइंट पे मुझे समझ में आया कि running 2 D2C brand was a very very challenging kind of a thing because we are making brand from scratch. कोई backing तो है नहीं हमारी, और उससे 2 D2C बनाना, जीरो से शुरू करना, फंडिंग किसी की नहीं है, फंडिंग किसी के पास नहीं, तो that was a tough kind of a thing. So since we are talking about D2C brands, what do you feel are the main challenges today's D2C sector's competitors with you and other people are trying to enter? What do you feel are the main challenges they can face? To get your first customer is the most difficult part, right? मतलब you can make the product बना लोगे आप, उसके पीछे आप शूट भी कर लोगे, उसमें पैसे भी लगा दोगे, बट वो प्रोडक्ट कैसे बेचना है आज के टाइम में when there are n number of players in the market, सेम शर्ट्स बहुत लोग बेच रहे हैं, राइट? और आप कैसे एज बना सकते हो उस मार्केट में? सो गेटिंग कस्टमर एंड इन D2C पैसा आपका रिपीट कस्टमर देता है, राइट? आपका यू कैन ब्रिंग इन न्यू कस्टमर थ्रू मेटा एड्स, आजकल जो पीपल आर Performance marketing, yeah. बट पैसा आपका रिपीट कस्टमर ही देता है. एंड हाउ कैन यू गिव अ वैल्यू टू अ कस्टमर कि वो आपके पास वापस आए, be it through the content which you are making on social media, be it the fabric or a cloth which you are giving to them, कि वो आपके पास वापस आना चाहिए. D2C का मेन मतलब है रिपीट कस्टमर को लेके आना, कैसे भी लेके आना.
न्यूअर ऑडियंस को अपना कंटेंट के थ्रू अपना सामान बेचना बेसिकली. सो चैलेंजेस बहुत हैं D2C में, क्योंकि आपको ब्रांड जीरो से बनाना है एंड एक एक प्रोडक्ट को बेचना है आपके पास. B2B में Yeah. आपको ये होता है कि आपके पास एक वॉल्यूम होता है, Yeah, you राइट, give it to a business. बिजनेस एंड यू Yeah. कैन गेट अ वॉल्यूम काइंड ऑफ स्टफ. Yeah, और यहाँ पे क्योंकि आपको कैश फ्लो मेंटेन Each- करना है, yeah, एक एक and प्रोडक्ट each बेचना है, customer, एक एक yeah. कस्टमर को बेचना है, तो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट Fair. काइंड ऑफ अ थिंग. एंड व्हेन देयर आर सो मेनी मच कंपटीशन इन द मार्केट, Hmm. इतनी मार्केट प्लेसेस है, Amazon, Myntra, Flipkart Hmm. करके मार्केट प्लेस बन गई हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट योर ओन वेबसाइट. सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग गेम. एंड That और आजकल positioning around everything. positioning, you how to position in a market where there are n number of brands doing same things. आप Hmm. कैसे उसमें से निकल के आ सकते हो, कैसे अलग निकल के आ सकते हो, क्योंकि people will buy different stuff, right? Google is a search platform, Meta is a explore platform. जब आप Facebook या Instagram कर रहे होते हो, आप कुछ यूनिक आता है तभी आप उस पर रुकते हो, राइट? Fair. तो वो कैसे यूनिकनेस आप अपने ब्रांड में ला सकते हो कि कस्टमर आपको पुल इन हो कर पाओ आप. Hmm. दैट इज अ मेन चैलेंज राइट नाउ व्हिच आर Completely फेसिंग. और इतने ब्रांड्स हैं, मतलब, और हर दिन एक नया चैलेंज है यार. मतलब इन अ बिजनेस आल्सो यू डू, एंड कोई भी बिजनेस करो, देयर इज अ चैलेंज डेली. एंड Hmm. हाउ डू यू केटर एंड हाउ डू यू रन थ्रू दैट चैलेंज द मेन. Are you scared of these big players? हमारे जो बड़े प्लेयर्स थे मार्केट में, उससे आपको थोड़ा बहुत डर लगा स्टार्टिंग में कि कैसा था? When you started? डर तो ऑब्वियसली लगता है कि आप किस विजन से आप उतरते हो प्लेस में. मतलब यू हैव सम इंस्पिरेशन के मुझे, मतलब इन जैसा नहीं बनना, बट हाँ इनको देख के आप के मार्केट में उन्होंने एक पोजीशन बनाई होती है अपने. मोर देन डर, यू लर्न फ्रॉम देम, राइट, कि उन्होंने किस स्टेज पे अपने बिजनेस को स्केल किया, आपने उनसे क्या सीखा बेसिकली. आप उनको देखते हुए अपने बिजनेस में क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. कॉपी तो नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ उनसे इंस्पिरेशन लेके अपना ट्वीक करके कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हो. सो डर नहीं था कभी भी, बट हाँ ये था कि इतने प्लेयर्स मार्केट में हैं, तो वो एक यूनिकनेस हम अपने ब्रांड में कैसे ला पाए. तो इट्स ऑल अबाउट यूनिकनेस, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने में इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल बैरियर. मतलब एनीवन इन दिस कंट्री कैन स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड. कुछ नहीं चाहिए आपको, एक फैब्रिक लेके आना है अपने 5 मिनट, उसको बनाना है और एक वेबसाइट बना के उस पर डाल देना है, उसका रिव्यू ले लेना है. बट हाउ यू ग्रो फ्रॉम देयर एंड उसको बिजनेस कैसे बनाना है, दैट इज द मेन चैलेंज विच अ फाउंडर फेस, राइट. कि मतलब स्टार्ट तो कर लेंगे, बट उसको स्टार्ट को कैसे, उसको एक प्रोफेशनल बिजनेस को लेके जाना है जब इतने प्लेयर मार्केट में, एक यूनिकनेस कैसे लेके आना है. तो दैट इज अ मेजर चैलेंज विच वी ऑल फेस ऑल डे लॉन्ग. You might be even having some issues with shipping. Like आपके end से प्रोडक्ट तैयार हो गया, फिर बाद में क्लाइंट को शिप करना रहता है. So did you have any issues with shipping? So D2C में शिपिंग आज की डेट में when we started in 21, तब भी ऐसा इशू नहीं था, बिकॉज 2019-18 में बहुत चीजें रिवॉल्व होनी शुरू हो गई थी. देयर वर अ लॉट ऑफ D2C ब्रांड व्हिच वर कमिंग अलोंग, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ एग्रीगेटर्स व्हिच आल्सो केम इन. देयर आर शिपरॉकेट, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा. देयर आर Yeah. लॉट ऑफ ब्रांड. वी पार्टनर विद शिपरॉकेट इनिशियली, बट आई वाज फेसिंग सम इश्यूज विद उस टाइम पे. अब तो शिपरॉकेट दे हैव इवॉल्वड अ लॉट, but that point of time there was no concerned person कि हम किसके पास कुछ query हो तो. Yeah, because I've seen videos, I've Yeah. heard so many, like on Instagram, I've seen so many उसमें videos बहुत with issues. issues. Shiprocket is a platform where they are basically an aggregator Hmm. where they have multiple courier partners and you can go in and वो आपको रेट के हिसाब से आपको क्या चूज करना है वो आपके ऊपर है. कि अगर मेरे को दिल्ली टू बॉम्बे का रेट ब्लू डार्ट कम दे रहा तो मैं ब्लू डार्ट को चूज करूंगा. तो ऐसे ऐसे कुछ पार्टनर थे. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे डिलीवरी जो उनका प्लेटफॉर्म भी अच्छा लगा, और उनके साथ मैं अभी तक स्टिक हूँ. इश्यूज उनके साथ भी हैं, बट बिजनेस में आपको जो 2 पैसे कम देता है आप उसको चूज करते हो. और एक कस्टमर को जो थोड़ा मतलब डिलेज ना हो बेसिकली, और आपको क्वेरी पे कौन प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर रहा है वो. तो आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद डिलीवरी राइट नाउ directly. So I am working directly with them right now. I am working with Shiprocket right now as well with their checkout service. But for delivery, I find delivery a bit cheaper because I'm directly using delivery. Shiprocket के अंदर delivery आता है. मतलब you can choose in Shiprocket n number of courier partners. तो obviously अगर delivery से मैं directly काम कर रहा हूँ तो मेरे को rates थोड़े कम ही मिलेंगे. तो I am directly working with that. और उनका user interface, उनका जो app है, उनकी जो website है, क्वाइट सीमलेस. तो मुझे कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा कभी भी. बीच में लगा था क्योंकि उनके साथ भी अभी ये इशू है कि देयर आर एपीआई वेयर यू हैव टू पुट इन क्वेरी, मेल करना पड़ेगा, उनका रिप्लाई आएगा. तो दिस इज अ वेरी, वो हर किसी के साथ है, बट क्योंकि रेट्स में चीपर है एंड डिलीवरी टाइमली हो जाती है, एंड डिलीवरी इज नाउ IPO
आने वाले आ चुका है शायद, Hmm. तो उनके मतलब सर्विस तो अच्छी है मतलब। These the जो delivery partners I have seen that you know the aggregators be I don't know why they don't have a call center. बहुत ज़्यादा ब्रांड है इस कंट्री में, और एक दिन पे हर ब्रांड अलग अलग स्टेज पे बिजनेस कर रहा है राइट नाउ, राइट। कोई 100 ऑर्डर शिप कर रहा है डेली के बेस में, कोई 1000 ऑर्डर शिप कर रहा है, कोई 10,000 ऑर्डर शिप कर रहा है। अब हर कोई डिलीवरी यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सोचो कि हर सेकंड में इतने ऑर्डर डिस्पैच हो रहे हैं, तो हर मिनट में उनको कॉल जाती जाएगी। तो सेटिंग अप अ कॉल सेंटर इन इंडिया राइट नाउ इट्स अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि एम्प्लॉयज महंगे हो रहे हैं, राइट। तो उनका ये है कि दे हैव सेटअप अ सिस्टम, ऑटोमेटेड इतना कर दिया है कि आपको कुछ क्वेरी होती हो करनी है तो दे हैव, you can click a button and you can reply to them, or you can ask something from them and they can reply within a second or so. So they have bots created on WhatsApp where there are automated chats are going on. But I personally feel sometimes that there should be a dedicated member to a brand which is doing an X number or which is doing a Y number, so that उनको at least क्वेरी के लिए थोड़ा रिजॉल्वमेंट जो है वो जल्दी हो जाएगी। बिकॉज बहुत बार क्या इशू होता है कि you got an order today and your inventory is sorted and you have managed supply chain so well that you can ship the order next day, but आपने तो next day भेज दिया, पर डिलीवरी की वजह से XYZ रीजन की वजह से वो 5 दिन के बाद पहुंचा। तो कस्टमर आपको जानता है, कस्टमर डिलीवरी को नहीं जानता, कस्टमर शिप रॉकेट को नहीं जानता, कस्टमर के फेथ आप हो आपको तो जो वैल्यू खराब होती है, जो क्रेडिबिलिटी खराब होती है, वो आपकी होती है। सब जो एग्रीगेटर आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, बीट डिलीवरी, बीट कोरियर पार्टनर्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स, और चेकआउट्स पे हैं, वेबसाइट पे हैं, पेमेंट गेटवेज पे हैं, तो यू हैव टू चूज जो आपका इजीली और जल्दी टाइमली रिजॉल्व कर दे इशू। बिकॉज कस्टमर आपने लूज करने में 1 मिनट लगता है, वो कस्टमर आपके पास वापस कभी नहीं आएगा, और आप उसको एक्स वाई रीजन दे दो, वो आपको ही जानता है, वो आपके ही लिए आता है। आप उनको वो डिले कर रहे होंगे, आप कितने भी रीजन दे दो वो कोई नहीं मानेगा, वो आपके सेकंड बार परचेज नहीं करेगा। एंड once it's gone, it's gone. yeah, it's a very big letdown at that point of time. Since we are talking about services, how do you feel your journey has been with agencies? Like at one point in time you did have to take an agency lena pada to maybe grow with your content or your socials, or in a way, as in sense, get more sales. So yeah, 21 में when I talked about I started clothing and food brand, तो उस समय because कोई नॉलेज नहीं थी, राइट। आई वेंट स्ट्रेट फ्रॉम द जॉब, कुछ पता नहीं था कि क्या कैसे बेचना है, मतलब बिजनेस कभी किया नहीं था, राइट। तो तब हमेशा लगता, तब सोशल मीडिया बहुत हाइप पे था, राइट। बहुत एजेंसीज बनी उस समय, और आपको लगता था कि आप नहीं कर पाओगे काम, और आपको लगता था कि आपके पास पैसे हैं तो व्हाई नॉट कि आप किसी एक्सपर्टीज को दो और वो आपका काम करके देंगे। तो हमने भी ऐसी, मैं अब कह सकता हूँ, बहुत गलतियां की उस समय। मतलब वी हायर्ड अ वेरी बिग एजेंसीज इन फूड ऑल्सो, इन क्लोथिंग ऑल्सो। उनको 50-50 हज़ार महीने के दिए जस्ट टू हैंडल आवर सोशल मीडिया। बहुत महंगा शूट कराया। तब हम दिल्ली में थे, अब तो बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ से कपड़े यहाँ भेजे शूट के लिए, बड़े बड़े मॉडल्स लिए, 1 लाख रुपए शूट पे खर्च किया। तो वो मिस्टेक्स हम लोग सब करके आए हैं। जब तक फाउंडर का टच नहीं है सोशल मीडिया के पेज पे, तब तक वो सोशल मीडिया पेज ग्रो नहीं हो सकता। बिकॉज एजेंसी व्हाट दे डू, देन दे कैन ब्यूटीफाई आवर पेज, राइट। उसके कलर चेंज कर सकते हैं, उनका लेआउट चेंज कर सकते हैं, उनकी ग्रिड बहुत अच्छी तरह सजा सकते हैं, बट वो पर्सनल टच अभी मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, बट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माई 2 ब्रांड्स, के जो पर्सनल टच है, यू हायर पीपल इन योर टीम, राइट। इंटर्न्स कैन बी देयर कैन बी एम्प्लॉयज, आपका थॉट प्रोसेस होता है, दे कैन एग्जीक्यूट वेल इन दैट। बट हायरिंग, गिविंग एवरीथिंग टू एजेंसी इज अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज वो पर्सनल टच कस्टमर को के पास नहीं आ सकता जो आप एज अ फाउंडर लेके आ सकते हो, और आप एज अ टीम लेके आ सकते हो, rather than agency. And be it performance marketing, it's a very big game. Yes, I also have an experience of working with a number of agencies, because I always thought के मेरा फोटे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मेरा फोटे प्रोडक्शन है, तो जिसका फोटे परफॉर्मेंस है, स्केलिंग है, आई शुड गिव इट टू देम के। बट what I felt right now in a bit of time, that as a founder also, as a team also, that you should have a knowledge of performance as well, because if you are working with any team or any agency, if you can't ask them questions and उनको मुश्किल कंडीशन में नहीं लेके आ पाओगे, तो सबका मोटिव यही होता है कि आपको स्केल लेके आए, बट कोई पॉइंट पे आपको स्केल नहीं लेके आ पाती एजेंसी। XYZ रीजन हो सकते हैं, प्रोडक्ट रीजन हो सकता है, प्राइसिंग रीजन हो सकता है, मार्केटिंग का सेंस रीजन हो सकता है। बट एज अ फाउंडर, व्हाट आई फेल्ट in these 2-3 years which I've worked, that you should also have a knowledge of that.
आप चाहे मैनेज ना करो उसको, बट हाँ आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि यू कैन पुट देम एंड यू कैन आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम देम, कि वो कुछ भी ना कर रहे हो, मतलब वो आपको उल्लू ना बना रहे हो बेसिकली। आपको इतना नो हाउ होना चाहिए कि आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके साथ वो काम कर रहे हैं, हाँ वो एक पॉइंट पे रिजल्ट नहीं आ रहा बट एफर्ट्स वो दिखने चाहिए कि दे आर डूइंग एफर्ट्स। रिजल्ट नहीं आ रहा, आज नहीं आ रहा तो रिजल्ट 1 महीने बाद 2 महीने बाद आ जाएगा, बट वो एजेंसी का क्या काम होता है, क्योंकि दे आर हैंडलिंग सो मच ऑफ क्लाइंट्स, राइट। एक एजेंसी के बाद एक टाइम पे 10-10 ब्रांड्स, 15-15 ब्रांड्स काम कर रहे हैं, सबके बजट अलग अलग हैं, सब अलग अलग स्टेज पे काम कर रहे हैं। समवन इज डूइंग 10 लाख अ मंथ रेवेन्यू, समवन इज एट अ नेशन से जो 1 लाख का रेवेन्यू कर रहा है, कोई 50 लाख का 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो हर किसी का मॉडल अलग है। जो एक ब्रांड पे काम कर रहा है वो दूसरे ब्रांड में कभी काम नहीं करेगा, क्या कभी करेगा भी, बट मोस्टली नहीं करता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच, बट आई थिंक एज अ फाउंडर एंड एज अ टीम ऑफ और फाउंडिंग टीम दैट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट। आप काम किसी से भी कराओ, जरा बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो यही है मतलब कि आपको नॉलेज होनी चाहिए मतलब इस चीज की। So now that we see that Dalchini is quite the vibe over here in Mumbai and even in areas across pan India, do you feel that Dalchini can soar in the international markets? What's your take on that? Yeah, from the first day I told you that कि दालचीनी नाम रखने का रीजन ही होता है कि we wanted to go global and we believe that Indian art और Indian handicraft, Indian artisans का को बहुत लोग पूछते हैं बाहर, राइट। इतना इतना Demand is nice. इंडिया में इतना क्राफ्ट है, इतने फैब्रिक्स हैं, आप किसी भी कंट्री के किस कंट्री में कहीं भी चले जाओ, डाउन साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट चले जाओ, यू फाइंड अ लॉट ऑफ क्राफ्ट। मतलब लोग घर घर में कुछ बना रहे हैं। तो एंड मोदी जी ने भी बोल रखा है कि मेक इंडिया को आगे ऊपर लेके जाओ, तो ये तो है ही। बट मतलब आप इतना कुछ इंडिया में इतना कुछ है जो आप अभी भी वेस्ट में बहुत कुछ, मतलब पीपल टेंड टू लुक एट इंडिया, राइट, कि लोग देखते हैं कि कब ये क्राफ्ट आएगा। तो अभी बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर नहीं हुआ मार्केट में, और अभी वैसे इंडिया मार्केट ही बहुत बड़ी है, अभी तो हमने इंडिया ही कवर नहीं किया है पूरा। सो बट वन डे डेफिनेटली वी वांट टू गो ग्लोबल एंड दिस दालचीनी विल गो ग्लोबल एंड we want to open stores of Dalchini as well in the coming future. But first, we want to stabilize an online market. Then slowly and steadily, Dalchini ka store खुलेगा. Are you planning funding? Yeah. So currently, I'm also because right now I'm working alone in this brand, and as I mentioned, that Sadhvi is working full time. So right now, I'm also eagerly looking for a co-founder who can join me and who with whom we can run brand and can scale it to a next level. And also, yes, we are looking for funding and all. We will start the process by next year, starting next year, because to get to a scale from 0 to 1 you can do it, right, but from 1 to 0, 1 to 100, you need a lot of people to support you. So we think that, I think पैसा ग्रोथ का बैरियर नहीं होना चाहिए कभी। आई फील के आप इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो वो एक फैक्टर नहीं होना चाहिए। वो फैक्टर जितना जल्दी आपके पास आ जाएगा और एक कुशन मिल जाएगा आपको, यू कैन ग्रो। आई थिंक जो हमारे विजन है, जो मिशन है हमारा, इसको कहाँ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है दालचीनी को, वी वांट टू ओपन स्टोर्स एंड वी वांट टू गो ग्लोबल एज आई मेंशन। सो या वी आर लुकिंग फॉर फंडिंग एंड ऑल्सो वी आर looking for co-founder as well. Yeah, shout out to all the co-founders and people who want to do funding. Please reach out to us, or you can reach out directly to Sir on his page. And he's building something really cool. You can always associate with him. You can talk to him. If things work out through us, we'll be more than happy that he found someone through us. Could you touch upon issues of RTO? Am I correct? Like you can add on to it, Brad? Yeah, so I think major brands nowadays we see like काफी उनको तकलीफ होता है कि RTO is something that D2C brands के लिए काफी. So any advice on that or your take on what RTO? How did you sort that out कि आपने देखा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, या when you faced the challenge क्या था आपका? So लोगों को दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक RTO एंड रिटर्न्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। रिटर्न्स आर जब आपने कस्टमर को डिस्पैच किया, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट में पसंद नहीं आया एंड ही वांट टू रिटर्न दैट और एक्सचेंज दैट, तो वो रिटर्न हो गया। मतलब कस्टमर ने एक्सेप्ट किया, उसने पहना, उसको फिट अच्छी नहीं लगी या कस्टमर को पसंद नहीं आया तो उसने रिटर्न किया। RTO इज रिटर्न टू ओरिजिन। RTO मेजरली हैपेंस विद COD ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर। 99% मतलब आपने पार्सल भेजा बट उसने रिसीव ही नहीं किया, तो वो तो उसने देखा ही नहीं ना प्रोडक्ट, तो वो वैसे ही वापस आ गया। उसमें आपकी शिपिंग गई, उसमें आपका रिटर्न की फीस गई,
और उसने कस्टमर देखा, प्रोडक्ट देखा भी नहीं, उसने वापस कर दिया, तो आपका लॉस है वो। तो आरटीओ मेनली 99% आरटीओ हैपन इन सीओडी ऑर्डर। लोग आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं और उनको पसंद आया, उन्होंने एक क्लिक से ऑर्डर कर दिया, सीओडी डाल दिया ऑप्शन, और जब प्रोडक्ट उनके पास पहुंचा उनको याद नहीं है, क्योंकि याद नहीं है तो उन्होंने याद है, उन्होंने कहा अब मैं बिजी हूँ, कल आना, कैंसिल कर दी। तो नाउ बट देयर आर वेज टू केटर दैट आरटीओ परसेंटेज, एंड आइडल परसेंटेज 15 से 20% इज अ वेरी गुड आरटीओ परसेंटेज इन D2C ब्रांड, मतलब इट गोज अप टू 25-30% ऑल्सो। मतलब जिनकी 15 से कम है वो बोलते हैं उन ब्रांड्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो अब काफ़ी स्ट्रक्चर आउट हो गया है आरटीओज में। लाइक मेन मोटिव है कि आप सीओडी ऑर्डर को कम कर दो, क्योंकि फेक ऑर्डर बढ़ जाते हैं जब सीओडी होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप सीओडी को बिल्कुल ही डिसेबल कर दो। बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया पीपल टेंड टू पे इन कैश, राइट? बहुत लोग कैश देना पसंद करते हैं, या बहुत लोग, क्योंकि आप नए ब्रांड हो, आपको लोग नहीं जानते, आपको ट्रस्ट कैसे करेंगे वो, आपको फर्स्ट पे नहीं करते हैं आपको। मतलब आप, अगर मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ, एडवर्टाइज कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे पेज को देखा, वो मेरे ब्रांड को नहीं जानता, तो वो, बिकॉज इंस्टाग्राम में इतने स्कैम्स होते हैं, इतने ब्रांड खुलते हैं, बंद होते हैं, तो लोगों को साथ भी धोखा हुआ है, तो वो ट्रस्ट नहीं करते हैं कि फर्स्ट टाइम मैं सीओडी करके देखता हूँ, आ जाएगा तो नहीं, आ जाएगा तो ठीक है, दे दूंगा पैसे, नहीं आया तो नहीं आएगा, मेरा कुछ जाएगा नहीं। तो आप सीओडी को नया ब्रांड डिसेबल नहीं कर सकता, इट्स अ वेरी रिस्की, क्योंकि आपके ऑर्डर वॉल्यूम कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको नहीं पता कि आपका कस्टमर कितने आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आपने डिसेबल कर दिया, एक चंक ऑफ ऑडियंस यू हैव इग्नोर्ड, राइट? तो वो एक ऑप्शन है कि आप सीओडी पे व्हाट वी डू, आई कैन टेल माय केस दैट वी चार्ज एन एक्स अमाउंट ऑन सीओडी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक्स अमाउंट का प्रोडक्ट है, 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, तो वी विल चार्ज 150 मोर सीओडी, तो वो 250 का हो जाएगा प्रोडक्ट। ओके। और प्रीपेड ज्यादा लोग लें तो वी ऑफर सम डिस्काउंट प्रीपेड पे, मतलब वी ऑफर 5% ऑफ। मतलब 100 का ले रहा है तो वो उसको 95 रुपीज का पड़ेगा अगर वो प्रीपेड ऑफर लेता है। तो दैट वे कस्टमर के पास एक वो है कि वो प्रीपेड ऑर्डर ज्यादा करे, और प्रीपेड ऑर्डर जब ज्यादा करेगा तो आरटीओ के चांसेस वैसे ही ड्रॉप जीरो ही हो गए। मतलब जिसने पैसे लिए वो तो एक्सेप्ट करेगा ही ना प्रोडक्ट। Secondly, because of these aggregators, Shiprocket, we are using Shiprocket checkout. It's a magic checkout. उसमें भी डिफरेंस होता है कि आजकल क्या होता है, एक Shopify चेकआउट है, लाइक आवर वेबसाइट इज ऑन Shopify, एंड आजकल मैजिक चेकआउट्स लगे, वन क्लिक चेकआउट्स बोलते हैं। उसमें क्या है, वो आपको कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा दे रहे हैं। मतलब आपने Shopify पे कोई ऑर्डर किया, आपको पूरा एड्रेस भरना है, तो आप इरिटेट भी होते हो कभी कभी, वो ये इतनी चीजें भर रहा हूँ, फिर आपके दिमाग से निकल भी जाता है कि यार चलो यार मैं कल कर देता हूँ, अभी तो तो आपके ड्रॉप ऑफ ज्यादा होते हैं वेबसाइट पे। तो देयर इज अ सिस्टम व्हिच हैज बीन मतलब मेड बाय एवरीवन राइट नाउ। इरेजर पे का है, शिप्रॉकेट का है, गोक्विक का है, बहुत लोग सबके आ गए हैं। तो दैट इज अ वन क्लिक ऑफ। आपने कभी भी शॉपिंग करी हुई है तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल्ड है, तो आपको सिर्फ ओटीपी वेरीफाई होगा, ओटीपी पूछेगा, आपने अपना नंबर डाला, उसने ओटीपी पूछा, ओटीपी जैसे ही आपने डाला तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो गया। ओके। तो वो मैजिक चेकआउट है, मतलब अपना 1 सेकंड का चेकआउट है, आपको भरना नहीं है कुछ भी अपने आप। तो वो शॉर्टन्स द यूजर एक्सपीरियंस वो। तो उसमें जैसे हम वी आर यूजिंग शिप्रॉकेट चेकआउट, सो देयर इज अ सर्विस इन शिप्रॉकेट चेकआउट दैट बाय देयर एआई, क्योंकि एआई काफी आ चुका है, तो वो एपीआई कैसे करता है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम समवन इन पास्ट, पर आपने उसका एक्सेप्ट नहीं किया ऑर्डर, और आप मल्टीपल डिफॉल्टर हो गए हो, मतलब आप 3-4 वेबसाइट के साथ कर चुके हो। हाँ। तो वो एपीआई आपको जज कर लेगा जब आप अपनी वेबसाइट पे आओगे कि ये मीडियम रिस्क कस्टमर है या ये हाई रिस्क कस्टमर है, ये ऑर्डर दूसरे वेबसाइट से और लेता नहीं है, तो वो आपको एक टैग दे देगा आपकी शॉपिंग पे कि दिस इज अ मीडियम रिस्क कस्टमर, दिस इज अ हाई रिस्क कस्टमर। तो आपको पता चल जाएगा। देन व्हाट वी डू, मीडियम रिस्क, देन वी यूज व्हाट्सएप ऑटोमेशन ऑल्सो, कि जब ऑर्डर जाता है तो वो कंफर्मेशन मांगता है जब सीओडी के, आर यू ओके टू ऑर्डर, तो सीओडी यू आर कंफर्मिंग सीओडी, तो वो सीओडी कंफर्म जब क्लिक करेगा तो वो भी टैग हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे 2 टैग आ गए, एक तो उसने मैसेज में कंफर्म कर दिया तो मतलब जेन्युइन है थोड़ा, एक उसके बाद हमारे को पहले ही पता चल गया कि वो मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है, तो वी टेंड टू कॉल देम। हम पूछते हैं कि आपको ये ऑर्डर है, ये इतना अमाउंट है, आप रिसीव करोगे कि नहीं करोगे। तो जब वो पीपल ओके इफ यू आर डिफॉल्टर्स वी नो, तो जब वो कहता है हाँ तो फिर हम शिप करते हैं। बट उसके बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी देयर आर परसेंटेज, मतलब आर आरटीओ इज अराउंड 12 to 15%। तो इतना कुछ करने के बाद ही अभी इतना हुआ है, क्योंकि टेंडेंसी है लोगों की फेक ऑर्डर करने की, वो आज के इंटरनेट की उसमें है। तो दिस इज द वे, मतलब पर आज की टाइम में बहुत देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ वेज वेयर यू कैन रिड्यूस योर आरटीओ परसेंटेज।
Amazing. Right. So basically, the don't trouble the brand Yeah. because why Don't make trouble the brand, man. We all are trying to grow something over here. What is wrong with you? These are genuine We know. Okay, we know. We're tagging you now. Catch now, if you were a person, if you see someone right now, would you recommend them to leave their job and start out something of their own? There are 2-3 takes in that. मतलब I think you should try out things. वो जॉब छोड़ के कर सकते हो, जॉब के साथ साथ कर सकते हो. मैंने जॉब छोड़ के किया, बट देर आर, मतलब मैं जो रिकमेंड करूंगा, दैट डोंट लीव योर जॉब जस्ट फॉर अ सेक ऑफ स्टार्टिंग समथिंग. फर्स्ट ट्राई आउट थिंग्स साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ कुछ ना कुछ धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया. अगर आपको फैशन में जाना है, ट्राई कुछ जो आपको पसंद है उसका फैब्रिक प्रिक्योर किया, फैब्रिक बनवाया, उसको 2-3 सैंपल को बनाया, अपने रिलेटिव में दिखाए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिखाया, वही आपको फीडबैक दे देंगे. एक पेज बना लिया शॉपिफाई पे, उसको लाइव करके देखा. मेटा ऐड चलाने में कुछ नहीं लाता, यू कैन रन दो ऐड. आपको इन्वेंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐड रन करो, आपको ऑर्डर आने शुरू हो गए तो आपको पता है कि प्रोडक्ट चल रहा है. तो जब आपको थोड़ा बहुत ट्रैक्शन आने लगे, देन यू थिंक ऑफ लीविंग अ जॉब. बिकॉज सिर्फ इसलिए छोड़नी जॉब कि मुझे पैसे कमाने हैं, देन मत छोड़ना. अगर पैशनेटली कुछ ग्रो करना है, कुछ बनाना है, फ्रूटफुल बनाना है फॉर यू, फॉर द पीपल, फॉर द इन्वायरमेंट, देन I think you should take that plunge. If in one way you could summarize a sentence, you could summarize your journey, what would that be? Seeing my nature, जो मैंने बताया कि मैं बहुत सेव करता था, then I मैंने अपने इंस्टाग्राम का हैंडल भी ये रखा है, the wild transition. कि for me it was wild. मतलब जॉब छोड़ के कुछ स्टार्ट करना ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, बट फॉर मी इट वाज वाइल्ड, क्योंकि मैं हमेशा सेफ खेलता था. एंड as I mentioned that I did a lot of mistakes, I made a lot of mistakes, बहुत पैसे गवाए. बट शायद अगर मैं वो नहीं करता तो आई थिंक वो मेरा एक लर्निंग कर्व था, राइट. वो हर कोई करता है, मतलब वो यू लर्न ऑन द जॉब, ऑन द जॉब ओनली, राइट. आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको कोई शॉर्टकट नहीं है बिजनेस में. मतलब मुझे भी लगता था कोई शॉर्टकट्स हैं तो वो पकड़ लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, बट देर आर एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट्स इन बिजनेस. आपको खुद ग्रो करना पड़ेगा, खुद हसल करनी पड़ेगी, खुद धक्के खाना पड़ेगा, खुद गिरना पड़ेगा, खुद रोना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को सीखोगे. कोई कोई नहीं सिखा सकता आपको बिजनेस, आप खुद करके ही सीखोगे उसको. एंड व्हेन यू विल मेक दोज मिस्टेक्स, ट्राई नॉट टू रिपीट देम. और जितनी जल्दी कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं कि जितनी जल्दी कर लोगे उतना बेनिफिट है, राइट. वो आपके टाइम स्पैन को कम कर देगी. सो मेक मिस्टेक्स, मतलब मिस्टेक्स से आप सीखते ही हो, चैलेंजेस आते हैं, बट डू इट. मतलब ये सोच के कि छोड़ दिया कि यार मुश्किल है, कब करूँगा, तो वो कभी नहीं कर पाओगे. मतलब आई थिंक कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत परफेक्शन को ढूंढते हो कि यार जब मेरी वो रील ऐसी बनेगी ना, मैं तभी पोस्ट करूँगा. जब मेरा वो पोस्ट इतना एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगने लगेगा ना, मैं उसको तभी पोस्ट करूँगा. या मेरा जब गारमेंट इतना बढ़िया बनेगा, मैं तभी उसको लॉन्च करूँगा. जस्ट डू इट. मतलब जो आपका आर्काइव में पड़ा है, जो आपने सोचा हुआ है, उसको जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक टेस्ट नहीं करोगे, आप उसको परफेक्ट कभी नहीं कर पाओगे. और आप सोचते रह जाओगे कि परफेक्ट चीज़ ही अगर मैं पोस्ट करूँगा या परफेक्ट चीज़ ही अगर मैं लॉन्च करूँगा, तो वो कभी नहीं होगा. वो आपको सिर्फ स्टार्ट करना है. कभी कभी क्या होता है कि आपको स्टेप लेना होता है, जो मैंने लिया, मतलब बिना कुछ सोचे समझे. वो पागलपन भी था, बट कभी कभी वो कहते हैं कि वो स्टेप लेना पड़ता है. अगर वो स्टेप नहीं लेते तो आप सोचते रहोगे यार वो टाइम आएगा, अभी मार्केट डाउन है. तब जब मैंने छोड़ा तो कोविड भी चल रहा था. मैंने तो ये इतना भी नहीं सोचा कि कोविड है, जॉब्स नहीं है, जहां पड़ा है वहीं पड़े रहे, सेफर सेट नेट है. आगे मार्केट स्लो है, सब कुछ बंद है, कुछ नहीं खुला हुआ. मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया कोविड का. तो कभी कभी होता है कि आपको स्टेप ले लेना पड़ता है. मतलब अगर आप सोचते रहोगे कि ये आएगा, वो कर लूंगा, नहीं कर लूंगा, वो रील बहुत बढ़िया बनेगी, मुझे पसंद आएगी, मैं तभी पोस्ट करूंगा, कुछ नहीं होने वाला. जो पसंद, जो आपने बना दिया वो डाल के देख लो एक बार, तभी पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं. Amazing. I believe Basically, that. the right risk. You have to take the Yeah. right risk with the right direction. And I think don't be scared of Take every risk. every risk. Take every And risk. don't be scared of Keep going in yeah, the same don't be scared of direction. doing Yeah. mistakes, because ultimately you will Yeah, land you will somewhere. land up somewhere. Above all, to bring this for a full circle moment for me as a young entrepreneur, it's always great to sit across someone, who is living the life that you are journeying on. So,
for me, it has been an amazing experience to talk with Sir. To be honest, like I'm at this point, I'm just taking down notes. To be honest, कि भाई ये सब आना बाकी है. I'm Yeah, just he sitting. handed me a book and pen and told me please take down notes. So, Yeah, but I have to take notes from Sir's experience. That okay, fine. I have to face these challenges of my own, and I believe that Yeah. you as a viewer as well, you're gonna maybe use this as a guide, use this as a benchmark of how you can grow. that's basically the purpose of our channel. Yeah, quite literally. Whatever you're doing out there, if you're working hard right now, if you feel that you can do something right now, this is your reason. And let's serve be an example that you can do it. Might be tough, might not be as easy as it's said, but you can do it. We are here to help people. Yeah, मतलब we are open to everyone in this ecosystem want to help each another. मतलब वो there's a बस एक point होता है कि sometimes we feel awkward to reach out to people, right? कि हम लोग क्या सोचेगा वो क्या नहीं. But I receive a lot of messages. मतलब I also reach out to people and I receive a lot of messages from people, unknown people, that they have seen our journey, they have seen our growth. So abhi we are yet to figure out a lot of things. We are not achieved anywhere, or we are not yet. We are saying that we have done a lot. We are yet to figure out a lot of things right now. But yes, we have seen that journey, which is very difficult to tackle, right? मतलब you can give up easily in that journey. So वो एक phase चला जाता है, तो वही phase में I think difficulty लोगों को आती है when you are especially not from the business background, when you are not from the fashion background, when you are not from that specific niche that you are trying to build. So it's a journey. You take inspiration for people. I also look out to a lot of people. I'll also read a lot. I also listen to a lot of podcasts so that I can also learn each day. And because it's a learning phase, right? You Fair. learn each day. You can learn anything from anyone, right? So it's a great experience also to talk to you guys right now and sharing my experience with you guys. And yeah, It has been amazing hearing your experiences. And guys, all of y'all who are watching this, he's open to talking to you guys. So you all can always reach out to him. We will be sharing all his insights and all his handles and socials on our page when we at the end of the podcast. So you all can reach out to him, talk to him directly. Start wherever you all are. Maybe take some insight from him and then start. So all the best in anything that you're doing. So I believe we can call this a wrap for this episode for now. And I believe we've touched upon all the areas, maybe as a guidebook for now, and take it ahead and see how we can build something new. For now, sir, thank you for being an amazing, amazing guest for us. For our first guest, to be honest, and I really love how we are going ahead. So, yeah, doing Yes, something lots great. in store. We were going to talk to a lot of other brands as well. But first brand, a lot of insight. I think it feels like we've got so much information. Yeah. I don't even think that, what is going to happen next. So it is, just make this as I would say like a guidebook to success. So it's good. All the best for your ventures ahead. Thank you for tuning in. See you in the next episode.